Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Gardan Academy Senior Campus Kushamala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. It's a part of online sports program by AppSex. Students, there are 14 chapters in your book, but we start trigonometry. Trigonometry start from chapter 9 to 14. So we start chapter number 9. It is trigonometry. It is week 1, day 1, chapter number 9, trigonometry. First of all, this is a Greek word. There are three Greek words make a trigonometry. Number one, trice. Number two, goni. Number three, metron. There are three Greek words, trice, goni, and metron, which will make trigonometry. Tri mean three. Goni mean angle. And metron mean measurement. So trigonometry means the measurement of three angles. In other words, trigonometry means the measurement of triangle. Okay. In this verse, there is the word angle. What is angle? What is angle? Angle. The union of two rays with common end point is called angle. कोई भी दो लाइंस जब आपस में ज्वाइन करती है तो एंगल बना देती है. Any two line, any two rays join each other with common end points make an angle. So this is an angle. This is a fixed line. It is also called initial line. And this is terminal line. This is initial line, this is terminal line. ये terminate होती रहती है, ठीक है, एंगल को बनाते हुए. So the union of any two line, the union of any two rays with common end point is make an angle. The unit of the angle is that unit. There are two big units of an angle. Number one, degree. Number two, radian. There are two big units of an angle. Number one, degree. Number two, radian. What is degree and what is radian? First of all, we discuss degree. What is degree? Degree. This is a circle. This is the center of the circle. And this is the circumference of circle. This is the circumference of circle. The total angle in a circle is 360 degree. Total angle is 360 degree. What is degree? Degree is the angle which made to convert the circumference of circle into 360 equal parts. To convert the circumference of circle into 360 equal parts. Then the one part subtend the angle is called 1 degree.
In other words, to convert the circumference of circle into 360 equal parts, then the angle subtends by one part. The angle subtends by one part, यानी एक पार्ट में जो एंगल बनता है, this is 1 degree. So it is denoted by 1 degree. 1 degree is equal to 60 minutes. And 1 minute is equal to 60 seconds. These are formulas that we use in exercise. 1 degree is equal to 60 minutes or 1 minute is equal to 60 seconds. Minute and second are the units, are the sub-units of the degree. These are the sub-units of the degree. Point to be noted. And 1 minute, the definition of 1 minute is called. The definition of 1 minute is the 60th part of 1 degree is called 1 minute. The 60th part of 1 minute is called the 60th part of 1 degree is called 1 minute, and the 60th part of 1 minute is called 1 second. The 60th part of 1 degree is called 1 minute. The 60th part of 1 minute is called 1 second. So point to be noted. There are two formulas that we use in exercise. 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Now we'll discuss decimal English system or decimal system. Or degree, minute, second system. There are three names: English system, decimal system, or degree, minute, second system. The definition of degree, minute, second, or decimal system or English system is that the system in which the measurement of an angle in degree and its subunits minute or second. यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं या तो डिग्री में या मिनट में या सेकंड में. सो इट इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम और डेसिमल सिस्टम और डीएमएस सिस्टम. ओके, ये हमारी जितनी भी ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इन सब में हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं. यानी एक लाइन के अंदर जो एंगल बनता है वो आपके पास डिग्री में बनता है, मिनट में या सेकंड में, उसमें हम डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं. ओके, now we discuss convert decimal number into DMS
और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, दैट्स मीन कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को पकड़ेंगे फिर क्वेश्चन में लेके आएंगे, यदि क्वेश्चन से आंसर, आंसर से फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को डीएमएस सिस्टम में चेंज करेंगे, फिर डीएमएस को डेसिमल में चेंज करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज देयर इज फॉर एग्जांपल 35.27 degree. This is a decimal number. We convert into DMS, यानी इसकी डिग्री सेपरेट करेंगे, मिनट सेपरेट करेंगे और सेकंड सेपरेट करेंगे, DMS सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिटन एज 35 डिग्री प्लस 0.27 डिग्री सेपरेशन। दिस इज द होल नंबर, दिस इज द डेसिमल नंबर, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 35 डिग्री, दिस इज द परफेक्ट नंबर एंड दिस इज द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को आप उसके सब यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, डेसिमल नंबर को जो पॉइंट में होता है, यानी कि इसको आप मिनट में बनाएंगे। अगर मिनट भी डेसिमल में आए तो उसका डेसिमल पार्ट उसके सब यूनिट यानी सेकंड में चेंज करेंगे। क्लियर? सो दिस कैन बी रिटन एज 1 degree is equal to, we use this formula, 1 degree is equal to 60 minutes. So this can be written as 35 degree plus 0.27 multiply 60 minutes. So multiply each other, 35 degree plus 27 multiply this can be written as 27.27 multiply 60. It is 16.2 minutes. This is also a decimal number. अब इस डेसिमल नंबर को भी हम इसके सब यूनिट में सेकंड में चेंज करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 35 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 0.2 मिनट। वी यूज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि बिग यूनिट को स्मॉल में चेंज करें तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर स्मॉल यूनिट को बिग में चेंज करें तो डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिग्री बिग यूनिट है, उसको हमने उसके स्मॉल यूनिट यानी मिनट में चेंज किया, तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अब अगेन यहाँ पे ये मिनट है, इसको हमने इसके सब यूनिट यानी सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो हम 60 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पार्ट, होल नंबर को नहीं, डेसिमल पार्ट जस्ट। तो हमने यहां पे सेपरेट कर दिया, 16 सेपरेट और 0.2 सेपरेट। अब दिस कैन बी रिटन एज 35 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। सो इट कैन बी रिटन एज 35 प्लस 16 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 60. This is 12. This is a perfect number second. अगर ये भी डेसिमल में आ जाए तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका सब यूनिट नहीं है, स्टॉप करेंगे यहाँ पे इसको हम। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज अ परफेक्ट नंबर नॉट डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज डीएमएस सिस्टम 35 डिग्री 16 मिनट एंड 12 सेकंड। दिस इज योर आंसर। Now we use this answer and this will convert into decimal number. Clear? And vice versa. Now 35 degree 16 minutes and 12 degree second. This can be, अब ये प्रोसेस सारा ये बैक चलेगा और यहाँ पे डेसिमल नंबर आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने ज़हन में ये रखना है कि हमने डेसिमल में लेकर है, डेसिमल के अंदर आपके पास बिग यूनिट है डिग्री। इट मींस आपने इस क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना ओनली, यानी आपके पास ना तो मिनट होना चाहिए ना आपके पास सेकंड होना चाहिए। तो मिनट को आप डिग्री में लाएंगे, क्योंकि मिनट स्मॉल यूनिट है और डिग्री जो है वो बिग यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट को आप बिग में लाने के लिए डिवाइड किया जाएगा। सिमिलरली
आपके पास सेकंड है, इसको भी आपने डिग्री में लाना है, यानी मिनट को भी डिग्री में और सेकंड को भी डिग्री में लेके आएंगे। अब मिनट को डिग्री में लाने के लिए तो 160 पे आपने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जब आप सेकंड को डिग्री में लाएंगे तो फिर आप 2 टाइम्स 60 को डिवाइड करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 3600 पे आपने डिवाइड करना है, तो यही सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 35 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 12 सेकंड. Now 35 as it 16 by 60 divided by 60, it is degree, and 12 divided by 3600, this also will convert into degree. यानी मिनट को डिग्री में लाने के लिए 160 पे डिवाइड और सेकंड को डिग्री में लाने के लिए 260 पे डिवाइड, तो नीचे 260 जब डिवाइड होंगे तो 3600 बनेगा। तो अब आप इसको डिवाइड करें, देखिए क्या आंसर आता है आपके पास। 16 डिवाइड बाय 60, so this can be we get 0.2666 degree plus 12 divided by 3600, 12 divided by 3600, so this can be written as 0.0033 degree. अब ये तमाम वैल्यूज आपके पास एक सेम यूनिट में आ गई। आपके पास अगर सेम यूनिट में सेम काइंड में आपके पास वैल्यूज हैं, आप उसको प्लस भी कर सकते हैं, आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। सेम यूनिट होना कंपलसरी है, यानी एक ही यूनिट में सारी वैल्यूज आपके पास होंगी। सो दिस कैन बी रिटन एज, आप इनको सबको ऐड कर लेंगे तो 35 प्लस 0.266 प्लस 0.0033. So this can be written as, this is 35.27 degree. This is your answer. अब आप चेक कर लीजिएगा कि ये देखें, आपने इस डेसिमल को लिया, डीएमएस में चेंज किया, फिर डीएमएस को पकड़ा तो आपके पास दोबारा डेसिमल नंबर वही चीज आ गई। दिस इज कॉल्ड कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू डीएमएस and vice versa. Now we discuss the second unit of the angle, radian. What is radian? This is the center of the circle. AB is the diameter of circle and OB and OA are the radius of circle. So this is this is the circle, O is the center of the circle and AOB is the sector of the circle. Sector make two radius and one arc. AB is the arc length of the circle, is the part of circumference. AB is the part of circumference of the circle. Okay, this is L, denoted by L. AB is arc length of the circle. Theta is the angle of the sector. OB is the radius and OA also is the radius. So this is, suppose 1 radian is equal to theta. Radian is the angle. Radian is the angle. This theta is called 1 radian angle. So radian is the angle which subtends by one arc of the circumference
at the center of the circle, be subtended by one arc of the circumference of circle and center of the circle, subtended at the center of the circle, whose length is equal to, this is the condition, whose arc length is equal to radius of circle. This is very important point. If arc length is equal to radius of the circle, then this angle is equal to 1 radian. Otherwise, then theta is equal to 1 radian. This is the condition of 1 radian angle whose arc length is equal to radius of the circle. यानी अगर arc length की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. First of all, it's subtended at the center of the circle by arc length, whose length is equal to radius of the circle. This is the condition. This will equal to radius, so then theta is equal to 1 radian. Otherwise, theta is equal to not equal to 1 radian. Okay? अगर ये आपस में सेम नहीं है तो ये थीटा आपके पास जो यहाँ पे एंगल बना है वो 1 रेडियन के इक्वल नहीं होगा. तो 1 रेडियन कब इक्वल होता है एंगल? उस वक्त जब आपके पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होती है. ओके, नाउ total angle in a circle is equal to 360 degree. Clear? In radian, this is in degree. In radian, total angle of the circle is 2 pi. Pi is in radian, not in degree. यानी आपके पास ये जितनी भी काउंटिंग है ये सारी रेडियन में है, डिग्री में नहीं है. डिग्री के लिए सिंबल है कि यहाँ पे ये स्मॉल जो है ना वो 0 होगा. ये दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. तो जब किसी भी फिगर के ऊपर ये सिंबल आपके पास हो तो वो आपके पास जो है ना वो एंगल डिग्री में होगा. अगर सिंबल नहीं है, विदाउट सिंबल आपके पास कोई भी नंबर है तो वो आपके पास रेडियन में होगा, पॉइंट ऑफ व्यू रेडियन. क्लियर है? तो पाई इज द नंबर which is equal to 22 over 7 or 3.1415. Okay, so total angle in a circle is equal to 360 in radian, but in degree, and but in radian is equal to 2 pi. So 2 pi is equal to 360 degree. 2 pi is equal to 360 degree. 360 degree सर्कल का डिग्री में एंगल है और 2 पाई सर्कल का रेडियन में एंगल है. सो दिस इज इक्वल टू दिस. अब यहां से हम 1 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इन रेडियन और 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन डिग्री में. तो ये दो फॉर्मूले यहां से हम डिडक्ट करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 रेडियन. ये आपके पास रेडियन इसके साथ रिटर्न हो या ना हो तो ये रेडियन में वैल्यू आपके पास यहां पे ये सिंबल है. सो दिस इज इन डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई. दिस विल कट. सो 1 रेडियन फॉर्मूला 180 डिग्री ओवर पाई that we use in exercise. In other words, अब 1 डिग्री का फॉर्मूला हम यहां से ड्रॉ करते हैं. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. दिस कैन रिटन एज, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360. अब यहां पे हमने इसकी डिग्री सेपरेट कर ली है, यानी 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर लिया. तो जो 360 विदाउट आपके पास डिग्री होगा वो इधर आके हमने डिवाइड कर दी. ये डिग्री इसकी जो है ना वो सेपरेट होगी यहां पे. ठीक है, 2 पाई ओवर 360 है. अब आपके पास ये वैल्यू रेडियन में बन गई. This will cut. 1 degree is equal to pi over 180. This is. तो ये आपके पास 1 डिग्री का फॉर्मूला है, ये हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, और ये आपके पास 1 रेडियन का फॉर्मूला है.
ये इन डिग्री में, और ये 1 डिग्री का फॉर्मूला इन रेडियन में है। तो यहाँ पे रेडियन रिटर्न कर लें, ना भी करें, डोंट वरी, जिसके ऊपर ये सिंबल नहीं है वो आपके पास ऑलरेडी रेडियन में वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसी डिडक्शन को फॉर्मूला को हम यूज करते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, so pi is equal to 360 degree over 2, so it is pi is equal to 180 degree। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, pi by 2 is equal to 180 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 90 आ जाएगा। अनदर फॉर्मूला दिस इज 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 2 और पाई बाय 2 रेडियन को आप डिग्री में 90 डिग्री आप बोल सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3, सो 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री, 270। दिस इज अनदर एंगल, ओके। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री, और 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 4 एंगल आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं 90, 180, 270 एंड 360, ये आपके पास डिग्री में भी आ गए और इन रेडियन में भी आ गए। ये और फॉर्मूलाज है, इनको आपने सेव कर लेना और याद करना, लर्न करना आपने। क्लियर है? नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, express the given angle into रेडियन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि गिवन जो एंगल सेक्सिबल में दिया गया है डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर, सेक्सिबल सिस्टम डिग्री, मिनट और सेकंड में होता है, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कह देते हैं, डीएमएस सिस्टम। तो अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो डिग्री में है या मिनट में या सेकंड में, आपने उसको कन्वर्ट करना इनटू रेडियन। और रेडियन क्या चीज है? ये कौन सा सिस्टम है? ये सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? Circular system, a system in which the measurement of an angle is in radian। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एंगल की मेजरमेंट रेडियन में होती है, सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। क्लियर है? सर्कल के अंदर जब भी एंगल को मेजर किया जाएगा तो वो रेडियन में किया जाएगा। ट्राइंगल हो, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी फिगर बनी हुई है, ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी है, ये सारी स्ट्रेट लाइन से फिगर बनती है, उसमें जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज इन डिग्री में बनेगा। तो सर्कल जो कर्व होती है, कर्व के अंदर जो आपके पास एंगल बनेगा वो सर्कुलर सिस्टम कहलाता है, और उसमें जो एंगल है वो हम यूज करेंगे इन रेडियन। पॉइंट टू बी नोटेड, सर्कल में जब भी एंगल यूज करना है रेडियन में यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जब भी एंगल यूज करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे कोई भी स्टेटमेंट, तो आपका एंगल रेडियन में यूज होगा। यानी अगर डिग्री में भी है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इज दैट 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। वेरी सिंपल, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अभी हमने यहां पे ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन में है और 180 जो है वो डिग्री में है। तो किसी भी डिग्री को आप पाई यानी रेडियन में चेंज करना चाहें तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? और यहां पे 1 डिग्री का फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा हुआ है, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। क्लियर है? ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास। तो यहां पे हम 1 डिग्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज करना है, पाई बाय 180। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हम पाई को 180 डिग्री में चेंज करना हो तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम इसको यूज करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। आप इसके डिग्री सेपरेट करें, यानी 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, so we use 1 degree formula, pi over 180, simplify 6, so this is pi over 6, this is your answer, it is in radian. Next
Part number 12. We take part number 12. 75 degree, 6 minutes and 30 seconds. This is important part. 75 degree, 6 minute और 30 सेकंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिग्री में होना चाहिए, नॉट मिनट नॉट सेकंड, बिकॉज कि आपने इस क्वेश्चन को यानी डिग्री को रेडियन में लाना. तो डिग्री को रेडियन में लाने के लिए आपके पास ऑल फिगर जो है वो डिग्री में होनी चाहिए, तब हम ये 1 डिग्री का फॉर्मूला पाई ओवर 180 यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री एंड सेकंड इनटू डिग्री. दिस कैन बी रिटन एज 75 डिग्री प्लस 6 ओवर 60. मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. 30 डिवाइड बाय 3600, 260 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? मिनट एंड सेकंड आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिग्री. ओके, तो मिनट को 60 पे डिवाइड करें डिग्री में आ जाएगा. सेकंड को 60 पे डिवाइड करेंगे यानी 3600 पे, तो आपके पास ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट ऑफ ऑल 6 डिवाइड बाय 60. 0.1 degree and 30 divided by 3600, 0.0083 degree. These are same units. We can add 75.1083 degree. This is a डेसिमल नंबर इन डिग्री. अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया. अब आप इसको इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके. इट कैन बी रिटन एज 75.1083 मल्टीप्लाई 1 डिग्री. 1 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर दें पाई ओवर 180. अब पाई की वैल्यू रेडियन में क्या होती है? पाई की वैल्यू दो है, एक डिग्री में है और एक रेडियन में. क्योंकि यहां पे क्वेश्चन चल रहा है कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो पाई की वैल्यू रेडियन वाली यूज करेंगे आप लोग. 22/7. ये दिस कैन बी रिटन एज 3.1415. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पे. वैल्यू 75.1083 मल्टीप्लाई यूज पाई फॉर्मूला 3.1415 ओवर 180. अब इसको इजीली सॉल्व कर लें आप. इसको न्यूमरेटर को वापस में मल्टीप्लाई करें, फिर 180 पे डिवाइड कर दें. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 75.1083 मल्टीप्लाई 3.1415 is equal to this and divided by 180. So this can be written as 1.3108. This is your answer, is in radian form. Okay, everybody understand? Now we solve question number 2, part number 1. Statement of question number 2: express the given रेडियन में यस इनटू डेसिमल एंगल सिस्टम. यानी अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो किसमें है? रेडियन में, और आपने उसको कन्वर्ट किसमें करना है? डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर. यानी डेसिमल सिस्टम क्या है? डीएमएस सिस्टम, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड. अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट इज दैट पाई बाय 8. This will convert into डिग्री मिनट सेकंड. आप डिग्री मिनट सेकंड इसको कन्वर्ट करेंगे. अब यहाँ पे 2 टाइप्स में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यानी इसको आपने डिग्री में लाना है तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, या 1 रेडियन का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं. यानी पाई की वैल्यू क्या आपके पास ये यूज कर ले, और 1 रेडियन फॉर्मूला आप यूज कर ले आप 180 डिग्री ओवर पाई, ये भी यूज कर सकते हैं.
देयर आर टू काइंड्स। नंबर वन, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। या आप ये यूज कर ले, क्योंकि ये रेडियन में है, इसको आप डिग्री में लाना चाहते हैं तो 180 डिग्री ओवर पाई ये यूज कर सकते हैं आप। सो वो यूज पाई इज इक्वल 180, दिस इज इजी। Pi is equal to 180 degree over 8. We divide it 180 divided by 8. तो ये आपके पास क्या है 22.5 डिग्री। दिस इज इन डिग्री। अब ये डिग्री है। अब डिग्री जो है जब डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो आप उसके सब यूनिट मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर मिनट आपके पास डेसिमल में आ जाता है तो उसके सब यूनिट सेकंड में चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी आपने एग्जांपल में देख लिया। क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज, जो कि हमने इसको डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि ये डेसिमल पार्ट में, अगर ये राउंड फिगर में आता है परफेक्ट फॉर्म में, तो फिर यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अगर ये डेसिमल में आ गया तो फिर इसको सेपरेट करके इसका डेसिमल पार्ट इसके सब यूनिट मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब यहां पे 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई। अब आप पॉइंट ये सेम में रखें कि आप जा किस तरफ रहे हैं, यानी आप मिनट की तरफ जा रहे हैं, डिग्री से मिनट की तरफ। तो डिग्री से मिनट की तरफ जाना हो तो डिग्री का फॉर्मूला 60 मिनट यूज करेंगे आप लोग। तो 60 मिनट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.5 मल्टीप्लाई 60, दिस इज 30 मिनट। दिस इज परफेक्ट फॉर्म, नॉट इन डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन इज स्टॉप। क्लियर? अगर ये भी डेसिमल में आ जाता लाइक दिस, तो फिर इस मिनट को इसके सब यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करते। क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज 22 डिग्री, आगे प्लस खत्म कर देंगे 30 मिनट। दिस इज योर आंसर। नाउ वी टेक पार्ट नंबर 12। Question number 2, part 12. This is very important part. 13 pi over 16. We will convert into decimal system, degree, minute or second. We use pi formula. Pi is equal to 180 degree. So this can be written as 13 over 16 multiply 180 degree. This is simplifying. 13 multiply 180 is equal to this and divide by 16. So this will equal to 146.25 degree. This is the decimal number of the degree. अब इसको हम डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 146 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। डिग्री का फॉर्मूला इन मिनट, यूज इन मिनट। सो दिस कैन बी रिटन एज 146 डिग्री प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 60 मिनट। सो 146 डिग्री प्लस multiply each other 0.25 multiply 60. 0.25 multiply 60, it is 15 minutes. So this is a perfect number, not in decimal. So question is stop. So this can be written as 146 degree 15 minute. This is your answer. Boys, the remaining parts of question number 1 and 2 are your homework. Exercise 9.1. Just 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके आप नोट्स बनाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी स्टूडेंट्स के
नोट्स बने होंगे आपने रिटन हैंड से, तो क्वेश्चन उसको कभी नहीं बोलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके नोट्स बनाएं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं एज असाइनमेंट भी दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी पार्ट्स हैं मेन्यू, आप उसके नोट्स बनाएं और उसको फिर आप लोग ग्रुप में मुझे मेरे नंबर पे उसको सेंड कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।